Hello everyone, myself Jaya Agarwal, Assistant Professor Political Science from SPCGC Ajmer. This is paper second of BA part first, representative Indian political thinkers, and in this video we will discuss about the political ideas of Kautilya once again. So here comes the Council of Ministers. The Arthashastra book written by Kautilya named Arthashastra has laid great emphasis on the need, organization, and proper working of the councils of ministers. And Kautilya has used the word amatyas or mantri for the ministers. And here Kautilya does not fix the number of ministers and says it should be according to the need and requirement, and he has laid down qualifications and merits of the ministers in great detail. And according to him, ministers should be appointed after proper testing, and the main function of ministers was to render advice, but some of them were holding portfolios or departments. And for Kautilya, there was an inner or closer council of ministers, also known as Mantra Parishad, having 3 or 4 ministers. Often it included Prime Minister, Purohit, Commander of the Army, and Crown Prince. That is Yuvraj. And here comes the procedure of consultation. And for Kautilya, according to Kautilya, the meeting place and time of the council had to be kept very secret. Next one is administrative system. So Kautilya has given clear, specific, and long details of administration, making his Arthashastra a manual for administrators. And he designates all ministers, amatyas, departmental heads, and senior officials as Tirath, and there are 18 Tiraths are there. One by one I have mentioned here names of these Tirthas. First one is Purohit, second one Senapati, then comes Yuvraj, Crown Prince, then next Dwavarik, that is Palace Officer, and Antarveshik, bodyguard or guard of palace, Samaharta, Collector General, Prashast, supplier of war material and other things, Sannidhata, chief treasurer, and Pradeshta, executive magistrate, Nayak, conductor of war, Por, city administrator, Vyavaharik, chief justice civil, and Karmantika, that is chief officer of mines, president of the council of ministers records, Dandapal, subordinate user of force, Durgpal, fort officer, and Antpal, officers of palaces, and Atavik, manager of forests. So there was a large number of subordinate officials under these tirthas, and they were always responsible to the king for their exercise of powers, and those who neglected their duties were punished. So this was the administrative system set up by Kautilya. Next one, here comes the financial administration. Kautilya remains always worried about increase in the prosperity of the state, and treasury is one of the important elements or organs of the state. But the king was not permitted to exploit the poor people by over taxation, and he proposed 3 types of systems of regular taxation. Uh, 3 types of system of regular taxation. First one is state ownership on very important industries. Second one is other industries to remain in private hands, and state to regulate production, distribution, and construction to prevent exploitation of the people. And some of the principles of taxation are have been mentioned by Kautilya. That is, first, there should be little or no tax on the production or import of things very useful to people. There can be heavy taxation on things of luxury, pleasure, and entertainment, and things connected with religion should not be taxed, uh, according to Kautilya. And he has mentioned various forms of income like fees, fine, customs, tax on animals, tax on professions, tax on gold, silver, etc. Next one is judicial administration. So proper judicial system is the life of every state, and the state can protect the people and care for them only by punishing the antisocial elements. And there are
two types of courts according to Kautilya. First one is Dharmस्थलीय that is civil or Diwani court, and second one is Kantak Shodhan that is criminal Fauzdari. First deals with property, contract, succession, marriage, settlement, security, partnership, etc. And the second deals with gambling, murder, etc. And according to Kautilya, the judges too can be punished if they violate or they do not follow law and rules. आज हम लोग बात करेंगे पेपर सेकंड बीए पार्ट फर्स्ट में कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य के जो राजनीतिक विचार हैं उसके अंतर्गत ओरिजिन ऑफ द स्टेट एंड किंग सप्तांग थ्योरी हम लोग हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मंत्री परिषद, जिसके लिए कौटिल्य आमात्य या मंत्री वर्ड का यूज़ किया है। और कौटिल्य हैं, इन्होंने इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए उन्होंने निश्चित नहीं की है, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये एक राजा की या राज्य की अकॉर्डिंग टू नीड एंड रिक्वायरमेंट जो भी उनकी आवश्यकता है उसके अनुसार इनकी संख्या कम या अधिक की जा सकती है। और मंत्रियों की नियुक्ति भी पूरी तरीके से जांच करने के बाद में ही करनी चाहिए। मंत्री परिषद का कार्य होगा राजा को सलाह देना। और इसके अलावा जो कौटिल्य है इन्होंने एक इनर और क्लोजर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब एक छोटी मंत्री परिषद की भी और व्यवस्था की है, जिसके अंतर्गत केवल 3 या 4 मंत्री रहेंगे। और ये जो 3 या 4 मंत्री इसमें मेनली होते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हैं, पुरोहित हैं, सेनापति हैं, क्राउन प्रिंस मतलब युवराज है। तो इनको लेकर एक छोटी उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी उन्होंने व्यवस्था की है। और उनका ये मानना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है मंत्री परिषद जब राजा के साथ में कोई किसी मुद्दे के बारे में मंत्रणा करेंगे तो जो स्थान है मीटिंग का और समय है वो दोनों बिल्कुल गुप्त या सीक्रेट रखे जाने चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रशासनिक व्यवस्था, जिसके ऊपर कौटिल्य ने इतना ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि प्रशासन के बिना राज्य का संचालन नहीं संभव हो सकता। और जितने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं उनके लिए अधिकारी गण हैं उनके लिए कौटिल्य ने तीर्थ वर्ड का यूज़ किया है। और इस तरीके के 18 तीर्थ उन्होंने बताए हैं। इनके नाम हमें याद करने हैं। फर्स्ट आ जाता है पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वारिक मतलब महल का अधिकारी, अंतर्वेशिक आ जाता है बॉडीगार्ड एंड गार्ड ऑफ पैलेस महल का संरक्षक। नेक्स्ट आ जाता है समाहर्ता, कलेक्टर जनरल रिगार्ड दैट इज कलेक्टर जनरल। नेक्स्ट वन इज़ प्रशस्त दैट इज़ सप्लायर ऑफ वॉर मटेरियल एंड अदर थिंग्स, जो भी युद्ध की सामग्री होती है रसद सामग्री उसका सप्लायर उसे सप्लाई करने वाला। एंड सन्निधाता चीफ ट्रेजरर मुख्य कोषाध्यक्ष, जिसके लिए सन्निधाता वर्ड का यूज़ किया गया है। प्रदेष्टा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, नायक आ जाते हैं कंडक्टर ऑफ वॉर मतलब युद्ध से संबंधित जितना ये काम ये देखेंगे नायक। पौर आ जाते हैं सिटी एडमिनिस्ट्रेटर आ जाते हैं नगर के प्रशासक दैट इज़ पौर। व्यावहारिक आ जाते हैं मुख्य न्यायाधीश, सिविल मामलों के मुख्य न्यायाधीश व्यावहारिक। कर्मांतिक आ जाते हैं चीफ ऑफिसर ऑफ माइंस, इनका जो ये खान है खनिज है इनके चीफ ऑफिसर आ जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। दंडपाल आ जाता है सबऑर्डिनेट यूजर ऑफ फोर्स। दुर्गपाल आ जाते हैं फोर्ट ऑफिसर, दुर्ग के जो अधिकारी हैं ऑफिसर हैं वो आ जाते हैं। अंतपाल आ जाते हैं ऑफिसर्स ऑफ पैलेसेस, महलों के जितने अधिकारीगण हैं वो अंतपाल। और अटाविक आ जाते हैं मैनेजर ऑफ फॉरेस्ट, जो भी जंगल हैं वन है उनके मैनेजर दैट इज़ अटाविक। और इसके अलावा जो कौटिल्य हैं उन्होंने इन तीर्थ गणों के नीचे काफ़ी इनके अधीनस्थ जो सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स होंगे उनका भी उन्होंने प्रावधान किया है। उनका यह भी मानना है कि प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है उसे पनिश किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन या टैक्सेशन, वित्तीय प्रशासन या कर व्यवस्था। तो जो कोष या खजाना है राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि कोई भी कार्य है वो ट्रेजरी कोष या खजाने के बिना नहीं हो सकता है। तो कौटिल्य ने जो रेगुलर टैक्सेशन है उसका अपना एक सिस्टम उन्होंने दिया है। इसके साथ ही उन्होंने टैक्सेशन के सिद्धांत बताए हैं जिसके अंतर्गत उनका यह मानना है कि पहली बात यह है कि किसी से भी आवश्यकता से अधिक कर वसूल नहीं किया जाएगा या कर की वसूली इस तरीके से नहीं की जाएगी कि किसी भी व्यक्ति को उसके अंतर्गत दुखी होना पड़े। और
जो हमारी डेली रूटीन की यूज़फुल चीज़ें हैं उनके ऊपर या तो बिल्कुल नॉमिनल नाममात्र का कर लगाया जाना चाहिए या उनके ऊपर बिल्कुल भी कर नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन जो भी हमारी विलासिता के साधन हैं, लग्जरियस हमारे आइटम है, आराम की चीज़ें हैं, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगाने चाहिए। और धर्म से संबंधित जितनी संबंधित चीज़ें हैं उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने राज्य की आय के कई साधन उन्होंने बताए हैं, जैसे फीस आ जाती है, फ़ाइन जुर्माना आ जाता है, कस्टम्स आ जाता है, जानवर हैं, प्रोफेशंस हैं, गोल्ड सिल्वर है और इन सब के ऊपर टैक्स लगाना, ये सब फॉर्म्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ इनकम, सोर्सेज ऑफ इनकम आ जाते हैं एक राजा के लिए। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो कौटिल्य के लिए जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, न्यायिक व्यवस्था है, वो राज्य की एक तरीके से लाइफ लाइन है। एंड जिसे कि राजा को हर कदम कदम पर मेंटेन रखना चाहिए और अपने नागरिकों की सुरक्षा करना क्रिमिनल से, एंटी सोशल एलिमेंट से राजा का प्रथम कर्तव्य है। यहाँ पर कौटिल्य हैं, दो तरीके के कोर्ट न्यायालय की उन्होंने व्यवस्था की है। पहला आ जाता है धर्मस्थलीय। धर्मस्थलीय न्यायालय वे होते हैं जो कि हमारे सिविल या दीवानी मामले देखते हैं। दीवानी मामले वे होते हैं जहाँ पर कोई भी मुकदमा होता है, वो या तो संपत्ति से, समझौते से, विवाह से या सेटलमेंट आ जाता है, सिक्योरिटी आ जाती है, पार्टनरशिप आ जाती है, उत्तराधिकार आ जाता है। जितने इनसे रिलेटेड मामले होते हैं, मनी रिलेटेड मामले, वो धर्मस्थली में आ जाएंगे। कंटक शोधन आते हैं जिसके अंतर्गत क्रिमिनल या फौजदारी मामले होते हैं, जैसे गैम्बलिंग, जुआ, मर्डर, हत्या आदि से संबंधित मामले कंटक शोधन न्यायालय देखेंगे। लेकिन यहाँ पर कौटिल्य की विशेष बात यह है कि उनका यह भी मानना है कि अगर जजेस खुद लॉ एंड रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो उनको भी पनिश किया जाना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।